Luke Belmar is this guy who has made like tens and millions of dollars in his 20s. And these three lessons from him, bhai, they genuinely changed my life. So when I first found Luke Belmar, which brings me to the first lesson I learned from him. When I first found him, जब पहली बार उसका वीडियो देखा, I was consuming a lot of content from people like Hamza and Andrew Tate. If you don't know, Hamza is a very popular YouTuber, like 1-2 million subscribers है. You probably know him. उसका एक स्कूल है, like basically an online educational community known as Adonis School. And वहाँ पे जो उसका सेल्स पेज था, जहाँ पे वो अपनी सब्सक्रिप्शन वगैरह बेचता था, the exact phrase which he used over there, he was like, bro, work like an immigrant, work like a dog, and I promise I'll transform your life. And I'm gonna make you like tens and thousands of dollars. So I was watching so much of content उस बंदे का. And उस बंदे की एक बहुत अच्छी चीज़ है. He speaks with so much of conviction in himself. वो जब बोलता है ऐसे लग ही नहीं सकता कि वो जो चीज़ कह रहा है उसकी जो ऑपोजिट चीज़ है वो सच हो सकती है. He has this gift of conviction. And वो बंदा इतनी conviction और श्योरिटी के साथ बोलता था that this is the best way of doing XYZ thing, making $10,000 a month, whatever. उसके साथ में अंडू टेट की भी आई वॉज वॉचिंग लाइक इमरजेंसी मीटिंग, सारी चीज़ें देख रहा था. एंड ही वॉज जस्ट लाइक कॉन्स्टेंटली सेइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग. अपनी पॉडकास्ट में अपनी खुद की जो लाइव स्ट्रीम्स करता था, यू नीड टू एस्केप द मैट्रिक्स, यू नीड टू गेट रिच, एंड फॉर दैट लाइक लुक एट मी, माई प्लेटफॉर्म लाइक द रियल वॉल्ट, it's valued at $1.2 billion. I'm a billionaire. And still, I work 18 hours a day, like 20 hours a day. So you need to just work and work and work. ये सारे लोग मुझे बता रहे थे, like the exact people who told me to escape the matrix. What is the matrix according to them? They used to say कि गवर्नमेंट जो होती है वो matrix है, like according to them. And the government prints the money. And they're telling you कि जो टाइम होता है, जो सबसे प्रेशियस वैल्यूएबल चीज होती है, यू नीड टू गिव दैट अवे टू द गवर्नमेंट जस्ट टू गेट व्हाट द गवर्नमेंट कैन प्रिंट आउट ऑफ थिन एयर. लाइक ये पैसा है, ये गवर्नमेंट जिसको ये लोग कहते हैं कि मैट्रिक्स है, जिससे ये बोलते हैं कि हमको बाहर निकलना है. मैट्रिक्स एक चीज बनाती है जो अनलिमिटेड बना सकती है. एंड ये लोग कहते हैं जो एग्जैक्ट सेम चीज है, लाइक द थिंग विच इज द मोस्ट वैल्यूएबल, विच इज टाइम, वी शुड गिव अवे ऑल ऑफ दैट. And we should try to get this money thing. Like, if you ever ask yourself, like, if you ever question yourself, and you're not glazing over them, you're not like a fucking fanboy of these people. If you've seen the movie Matrix, उसमें क्या concept होता है? Like 99 में जो movie आई थी Matrix की, it was basically, Matrix is a system constructed, जहाँ पे जो सारी machines होती है, जो इसके creators होते हैं, जो उसके architect होते हैं, वो आपकी body heat और energy को use करते हैं, ताकि वो पूरा system जो है वो फंक्शन कर सकता है. इज इट नॉट वेरी सिमिलर टू व्हाट दीज पीपल प्रीच? ये लोग कहते हैं दैट यू नीड टू एस्केप द मैट्रिक्स, एंड उनका तरीका इस चीज को करने का, लाइक एस्केपिंग द मैट्रिक्स, इज यू शुड गिव अवे योर बॉडी हीट, योर एनर्जी, एक चीज को जो कि कोटन उनको हिसाब से जो चीज मैट्रिक्स है उन्होंने बनाया. एंड व्हेन आई हर्ड ल्यूक बेलमार स्पीक फॉर द फर्स्ट टाइम, आई जेन्युइनली लाइक वो होता है ना कि आंखें खुल जाना. That's exactly what happened. I was like, bro, all these people are telling me I just need to work and work and work for money. But again, that's the biggest part of the matrix, if I'm not wrong. The financial system, the banking system. So Luke Belmar basically came to me and he told me, obviously, अपने videos के through, मेरे घर नहीं आया था. He was like, bro, you need to de-link your time from money. I know very typical advice, जो तू इतनी बार सुन चुका है, you're like, bro, like boring advice, whatever. But he was like, let's say, there are like I was very anti-crypto at that time, by the way. And मैं सोचता था it's easy money, whatever. But उसका लॉजिक था, अगर पैसा असली है ही नहीं, like it's a fucking fake resource, right? Like it's a fictitious asset. वो जो नोट होता है, वो जो डिजिट होती है हमारे स्क्रीन पे, जो रोज सुबह तुम UPI ऐप में अपना बैंक बैलेंस चेक करते हो, it's not real, right? It's not real. It's not a valuable asset. Like गोल्ड की वैल्यू होती है, डायमंड की वैल्यू होती है, लॉग की वैल्यू होती है, लॉग मतलब वो लकड़ियाँ, प्लाईवुड की वैल्यू होती है, कोल की वैल्यू होती है, नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू होती है. बट मनी इनहेरेंटली इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ इट्स ओन. फॉर एग्जाम्पल, मोनोपोली जो गेम होता है, उसके पैसे अगर तुम सबको बांट दोगे, नो वन गोना टेक दैट सीरियसली. बट अब बस ये हो गया कि गवर्नमेंट ने आके बोल दिया कि ये जो मोनोपोली वाले नोट्स है, ये आज से करेंसी है, लाइक इट्स
इशू और लाइक वट एवर, बेसिकली गवर्नमेंट इज द इशूअर ऑफ करेंसी, राइट? सो अगर गवर्नमेंट इसे बैक करने लग जाएगी, इट विल बी रियल. बट at its core, at its basic first principles, money is not like a real asset or something. And he said, ये चीज important तो है, it cannot be denied. He was like, bro, like all you want is a good fucking life, which I agree with him. Like, I want good health, I want better relationships, and I just want to like enjoy my fucking life, man. Like I'm here for a couple of years, and time fucking flew like the first 18-19 years of my life चुटकियों में खत्म हो गए. And there's like, it would be foolish to assume कि बाकी के जो साल है वो जल्दी जल्दी नहीं बीतेंगे. So I'm here to enjoy myself. I want better relationships, everything. I want better health. Like a side tangent, but when I was in 11th grade, 11th or 12th grade, like 12th grade to be honest, like तब ज़्यादा खुश था. 12th grade की starting में I had zero fucking money. मैंने start ही नहीं किया था, मुझे पता ही नहीं था business वगैरह क्या होता है. Like I only started in February or like January of 2024. February 3rd or 4th was the day I made my first rupee online on the internet. I think I made like 12.99 rupees की एक sale. And basically, I was unaware about money. And इन सारे लोगों ने बोला, making more money is gonna be the thing which allows you to escape the matrix, which will be the thing जिसके थ्रू ते लाइफ में जो भी सारी अच्छी फीलिंग चाहिए, prosperity चाहिए, you're gonna open all the doors which are required to get what you want. All these people told me the exact same thing, but मुझे समझ नहीं आया. When I was in 12th grade, I felt better. मेरा connection भगवान के साथ, bro, it was fucking 10 out of 10. I literally used to feel कि वो मेरे कान में बैठ के बात कर रहे. Like this might sound weird or something, but I truly used to, like I could visualize यहाँ से and यहाँ से कोई पर्पल कलर की, like a light purple कलर की quad type is connecting me to him. And I felt so good. कभी एंजाइटी कुछ नहीं होता था. I was like, bro, I'm fucking untouchable. God is there with me. Like ऐसा लगता था कि भगवान मेरे अपने हाथों से पैर पकड़ के सही दिशा में ले जा रहे हैं. I literally used to hear him. At such a good connection उनके साथ में. My mental health was like 10 out of 10. 11th में थोड़ी खराब थी because I was with the girl and shit. But after I broke up with the first girl I loved and all, उसके बाद life started going up and up and up after the breakup. And I felt so happy. I was going out to all these social events. And I was feeling on top of the world. Like I used to approach each and every single girl. I used to have the hypest moments of my life. ये speaker जो होता था, इस पर I used to play Z's, which is the iconic legend. Like he inspired me to start going to the gym. He died a couple of years ago. Like एक 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं. Z's के मैं गाने चलाता था hard style. And I used to fucking dance in the shower. Like सोचो दिसंबर में वो जो सर्दी होती है उसमें ठंडा पानी आ रहा होता था. And I used to be hype as fuck. I used to be high on life. मेरे दोस्त का एक वो saying था. He was like, मैं नशे वशे कभी करता नहीं हूँ, ना कभी किया like दारू सिगरेट वगैरह. So I used to be like, bro, I'm fucking high on life. People used to think like I was drunk because मैं इतनी energy में हमेशा होता था. I was dancing, I was having a nice time, good time, everything. And I was like, bro, this is fucking dope. I love life. I literally used to have like a smile on my face when I was just walking. I used to go out like लंबी लंबी walks पे नेचर में. मेरे घर के साइड में एक पार्क है. लाइक आई यूज टू वॉक बेयरफुट वहाँ पे. उसके साइड में एक रेजर्वायर है. लाइक बेसिकली वहाँ पे पानी स्टोर होता है ताकि लोगों को अपनी गाड़ी धोनी हो उसके लिए पानी ले सकते हैं. एंड जो पार्क है उसमें वाटरिंग कर सकते हैं. आई लिटरली यूज टू जंप ऑन इट. आई वॉज जस्ट हैप्पी मैन. लाइक ऑल माई लाइफ वॉज वेक अप अर्ली एंड आई जेन्युइनली यूज टू एंजॉय दैट. लिसन टू हाइप जीज म्यूजिक कान में लगा के. उसके बाद आई रिमेंबर माई एग्जैक्ट प्री वर्कआउट. आई यूज टू हैव 500 ml दूध. लाइक स्लिम फिट वाला जो भी होता है, जो भी वो दूध होता है लो फैट वाला 1.5% फैट, अमूल का पर्पल कलर का पैकेट जो आता है जिसमें 45 कैलोरीज होती है 100 ml में और 3 ग्राम प्रोटीन होता है. डोंट आस्क मी व्हाई आई नो दैट. आई यूज टू हैव दैट. उसमें एक केला डाल के, हनी डाल के एंड उसी में कॉफी मिक्स करता था. एंड आई यूज टू हैव द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ कैफीन, कार्ब्स, एवरीथिंग. आई वॉज लिसनिंग टू हाइप जीज म्यूजिक and I used to go to the gym. I had the best fucking workouts of my life. Like genuinely इतना खुशी फील होती थी. I had that smile on my face. मुझे पूरा रास्ता होता था. I was fucking shouting. वो जो तेज से गाने गा रहा होता था, I was just fucking shouting, having the time of my life. कोई नहीं था. वो सुबह सुबह सुंदर सा वो धूप निकल रहा होता था.
आई यूज टू लीव एंड जब तक जिम पहुंच रहा था तब वो सनसेट एकदम स्टार्ट हो रहा था एंड वो जो पूरा घास थी ज़मीन थी उसमें वो थोड़ा वो पानी के पार्टिकल्स होते थे लाइक वो जो ड्यू होती है वो जो मिस्ट होता है एंड द सन वॉज शाइनिंग अपॉन इट लाइक किसी ने ट्वाइलाइट मूवी देखी है वो वेम्पायर वाली तो जब वो एडवर्ड होता है वो वेम्पायर उसकी स्किन जैसे चमक रही होती थी धूप में लिटरली वो जो घास थी इट वॉज शाइनिंग लाइक दैट एंड आई वॉज हैविंग ऑल दीज ब्यूटिफुल मोमेंट्स इन माई लाइफ उसके बाद आई ऑल्सो यूज टू गो टू द स्कूल एंड देर आई वॉज द टिपिकल पॉपुलर किड everyone used to look up to me. They used to admire me. My teachers used to love me. Obviously बहुत सारे थे जो छिड़ते थे but एक जो थे मेरे क्लास टीचर जो थे like everyone they used to admire me. Like I was speaking to girls all across the school and maybe whatever like someone said like I was a player and shit but I genuinely enjoyed it conversing with everyone all around the school. उसके बाद I used to come home, I used to go out and have nice like fun vibrant conversations with people. I used to approach girls जो भी मिलती थी. And it was just like just ensuring I'm recording. It was just like a fun period of my life. उसके बाद आके I either used to go out again and it was just beautiful man. I was going on these long walks again वापस आके I was playing with like stray dogs and shit and I literally thought like it used to feel that way. God is my best friend. And पता नहीं उसके बाद मेरा बैंक बैलेंस तो बढ़ता गया ऊपर बट मेरा भगवान के साथ जो कनेक्शन था वो कमज़ोर हो गया. Like I've been trying to have that connection जो उस टाइम पे था and I'm unable to have that. And all these people told me that you want to escape the matrix. And इस escape the matrix के चक्कर में even though my bank balance grew whatever, I persuaded my parents that I don't want to go to college. I'm making decent whatever. वो चीज़ हो गई. But भगवान जो थे वो दूर होते चले गए. वो जो जिम में प्रोग्रेस हो रही थी वो दूर होती चली गई. वो जो खुशी थी वो दूर हो गई. मुझे सुबह जाना था दैट बिकेम ओवरबर्डन विद द स्ट्रेस कि भाई उस बंदे का ये काम नहीं किया क्लाइंट ने वो ये चीज़ बोली थी वो चीज़ बोली थी ये करना है वो करना है. आई लिटरली रिमेंबर मैं अपने पापा के साथ लाइक कुछ दिन पहले की बात है 2-3 दिन पहले आई क्लोज माई लैपटॉप एट अराउंड 11:30 इन द नाइट. आई वेंट टू माई पेरेंट्स एंड दे टोल्ड मी ब्रो यू लुक थोड़ा चिंतित लाइक यू लुक काइंड ऑफ वरीड एंड स्ट्रेस्ड एंड दैट हैड बिकम द नॉर्म. सो जस्ट टू get the thing like the money whatever I did get it. I'm not saying it's useless but at the same time I lost everything which mattered to me, all the things which truly matter in life. I always used to have this example like I've not given JEE but मैं उन बच्चों को देखता था जो JEE के लिए 16 घंटे 18 घंटे पढ़ रहे होते थे all these competitive exams and I used to think they're fucking stupid. I one day asked like I don't know like स्कूल से जब पास आउट हो गया उसके बाद जो हेड बॉय था स्कूल का ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन ही टॉट मी बॉक्सिंग इन एवरीथिंग एंड आई जस्ट वेंट टू स्कूल आई स्टार्टेड मेकिंग अ बिट ऑफ मनी. आई डिड नॉट टेल पीपल ऑब्वियसली लाइक नहीं बताना फ्लेक्स नहीं करना एंड माई क्लास टीचर आस्क्ड मी लाइक बहुत प्यारे थे वो सो वी रैंडमली गो टू मीट हिम एंड ही वॉज टीचिंग इन अ क्लास एंड ही वॉज लाइक बच्चों की काउंसलिंग कर दो वॉट एवर एंड सम किड आस्क्ड मी अ क्वेश्चन रिलेटेड टू इंजीनियरिंग. आई वाज लाइक व्हाई डू यू वांट टू डू दैट. उस बंदे ने बोला अच्छा कॉलेज मिलेगा इसलिए पढ़ना चाहता हूँ. I was like उससे क्या होगा. He was like और पैसे मिलेंगे प्लेसमेंट लगेगी. मैंने बोला उससे क्या होगा. उससे बोला बढ़िया लाइफ होगी. So the thing that they want is a good life and a good life is a combination of health, wealth and relationships. ये चीज़ उसके पास ऑलरेडी अभी है. He can decide to ensure उसकी जो हेल्थ है वो बढ़िया रहेगी. He can sleep. He can go out in the sun. Like I was having these awesome health protocols. Like I used to watch these videos of Luke Belmar का जो भाई है नेट and he told me कि भाई सुबह उठ के नींबू पानी whatever all these things. I was doing that and I felt awesome. I was researching क्या ingredients हमारी स्किन में टेस्टोस्टेरोन को कम कर सकते हैं. All these things like I figured out कि खादी एक जो कंपनी है इंडिया की it has like 100% organic stuff तो मैं उनके प्रोडक्ट्स खरीदने लग गया everything. And मैं अपनी हेल्थ वो बंदा भी मेरी तरह अपनी हेल्थ को अभी जो ऑलरेडी अच्छी है उसको और सुधार सकता है मेंटेन कर सकता है. He has the opportunity right now कि अपने माँ बाप के साथ 10 मिनट स्पेंड कर ले और जस्ट सिंपली लाइक स्पीक टू अ गर्ल और जस्ट सिंपली कॉल हिज ग्रैंड पेरेंट्स अप और जस्ट हैव अ नाइस ब्यूटिफुल कॉन्वर्जेशन विद गॉड. या फिर वो बंदा लाइक एवरीथिंग विच ही वांट्स इट कैन बी डन. बट ये बंदे क्या करेंगे विल डिस्ट्रॉय द हेल्थ फॉर द नेक्स्ट few years, maybe 5 years, 10 years, 15 years. And उसके बाद once they finally quote unquote made it, once they made the money, what are they gonna strive for? Health? वो तो उसके पास ऑलरेडी थी एंड वो उसको इतने सालों के लिए खराब करेगा
एंड देन he'll have to work even harder to get it back again. एक चीज को मेंटेन करना बहुत आसान होता है compared to obtaining it in the first place. For example, 3 years ago, I was fat as fuck. And मोटे होने से जो पतले होने की जर्नी थी, it was like 1,000 times harder than simply maintaining my weight right now. I can maintain like I must be like 14ish% body fat, maybe like abs ठीक ठाक थोड़ी बहुत दिख जाती है. It's so much easier to maintain this than to lose the weight. And that's what I learned. Like वो चीज को मेंटेन करना इतना आसान है और उसके पास अभी ऑलरेडी चीज है and he'll destroy it, try to get it back, but वो चीज कभी उतनी अच्छी हो ही नहीं सकती. Like रहीम के दोहे थे, राइट, इन लाइक 10th grade 9th grade whatever, I don't remember. एक पोयम थी हिंदी में, किसी ने भी पढ़ी होगी एनसीईआरटी की बुक में, कि अगर कोई धागा होता है, इफ द नॉट इज ब्रोकन, अगर वो टूट जाता है, यू कैन ट्राई टू पीस इट टुगेदर, लाइक यू कैन ट्राई टू डक टेप इट, यू कैन ट्राई टू नॉट बांध के वो पे जोड़ने का ट्राई कर सकते हो, बट इट विल नेवर बी परफेक्ट. एंड माई गर्लफ्रेंड टोल्ड दिस लाइन टू मी, लाइक इफ यू लाइक जब भी पहली बार प्यार में जाते हो, यू ऑल हर्ड इट, राइट, लाइक वो हमेशा सोचते हैं कि लाइक इफ एनीवन हैज डन दैट, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आई स्पीक टू दे अग्री एंड रिलेट विद इट. इफ यू हैव बीन इन लव फॉर द फर्स्ट टाइम, यू नो कि आप ब्रेकअप कर लेते हो, उसके बाद वापस पैचअप भी करते हो. सो वंस वी ब्रोक अप फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वॉज लाइक ब्रो, मुझे बंदी पसंद है. एंड उसके बाद ऑब्वियसली वो 2-3 दिन के लिए गुस्सा थी, वॉट एवर, एंड आफ्टर दैट थिंग स्टार्टेड कमिंग डाउन. So then I reinitiated conversation with her again. I know it's wrong. Like once you've broken up, you should not do that. But at that time I was like young and naive. And मैंने उसे बोला I want to get back together. And she was like, bro, I don't mind getting back with you. But एक बार जब वो धागा टूट जाता है, उसके एग्जैक्ट वर्ड से, वो कभी वापस सेम नहीं हो सकता. And I was like deluded कि नहीं भाई वो बंदी गलत कह रही, but I 100% agree. She was correct when she said that. So I lost everything, almost everything, in the pursuit of money. And just because I did not understand the concept of delinking your time from money. And it's easier said than done. I totally agree. Now, someone might be like, Somil, bro, in order for me to have a good wealth, like in order for me to have good health, like in order for me to buy the food for the diet, the protein for the gym and the gym membership, and the high quality healthy food and the luxury, the time जिसमें मैं अपनी हेल्थ को improve करने के protocols कर सकता हूँ, and the luxury of dedicating time to researching about health and everything, I need money, right? I need finances, right? And I'm 100% correct. If you're thinking I need to improve my relationships, Somil, but surely I do need money to get entry into the places where there are girls. Surely, right? At the same time, I don't want to be that low level guy जो कहता है कि हाँ झाड़ी में चल whatever. So I do need money to have good relationships in the first place, even with my parents. Like I don't want to be a leech जो कि उनसे लेता जा रहा है. I need to give back to them as well. I need to prove my credibility to them, because if you're doing well for yourself, they respect you more, they treat you with dignity and respect. So I certainly need that too. अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा भगवान के साथ अच्छा कनेक्शन हो, I need to have like a stress free life. अगर मैं भूखमरी से मर रहा हूँ, I don't have money for food tomorrow, then I probably won't have the highest quality of connection with God. So सारी जो अच्छी चीज़ है लाइफ में जिनकी तू बात कर रहे है सौमिल, I do need money for that, right? And you said delink your time from money. But how exactly do I do that? Which brings me to the second lesson I learned from Luke. Luke has around 150 people, like short form editors. Basically उनका काम एक है, ल्यूक बेलमार एक पॉडकास्ट पे जाएगा 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी जाता है, वो पॉडकास्ट का रॉ फुटेज लेना और उससे क्लिप्स बनाना, और वो जो क्लिप्स है उनको बार बार रीपर्पस करना. मान लो जनवरी में ल्यूक एक पॉडकास्ट पे गया एंड उससे उन एडिटर्स ने 50 क्लिप्स निकाली. द 50 क्लिप्स विल बी पोस्टेड ओवर द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 30, 40, 50 डेज. अलग अलग उसके जो बर्नर अकाउंट्स है, लाइक बेसिकली उसके नाम के अकाउंट्स जिनको वो नहीं मैनेज करता. फॉर एग्जाम्पल ल्यूक बेलमार विजडम, ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हैं, प्रोबेबली हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स लाइक दैट. सो जस्ट पोस्ट दीज क्लिप्स ऑन ऑल ऑफ दीज अकाउंट्स एंड उसके बाद जब 50 दिन हो जाते हैं, 60 दिन हो जाते हैं, ऑडियंस ऑलरेडी ये चीज देख चुकी है, उसके बाद वापस डालना, ताकि जिन लोगों को ये क्लिप पहले नहीं पहुंची थी अब उनको जा सकती है. सो ही बिल्ट आउट दिस entire ecosystem, and you might be thinking it's a pretty normal thing, whatever, blah blah blah, but try to see how much of a fucking genius he is. What do your favorite
creators do? क्या करते हैं वो लोग? They like every single day I'm gonna be a fucking slave to the algorithm. मैं देखूंगा क्या चीज़ ट्रेंडिंग चल रही है, उसके बाद मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा. लाइक आई डोंट एवर स्क्रिप्ट माई वीडियोज बाय द वे. मैं एक स्क्रिप्ट लिखूंगा, उसके बाद मैं थंबनेल बनवाऊंगा, उसके बाद मैं ये चीज़ करूंगा, टाइटल करूंगा, एसईओ ऑप्टिमाइज करूंगा. लाइक आई डोंट डू एनी ऑफ दिस शिट बाय द वे. एंड वंस ऑल ऑफ दिस इज डन, उसके बाद मैं बैठूंगा और एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा. उसके बाद मैं लिंक्डइन के लिए अलग पोस्ट बनाऊंगा, उसके लिए मैं ट्विटर के लिए अलग पोस्ट बनाऊंगा, उसके बाद मैं ईमेल लिस्ट जो होती है मेरी उसके लिए अलग पोस्ट बनाऊंगा, उसके बाद मैं एक अलग से यूट्यूब शॉर्ट बनाऊंगा, उसके बाद अलग से इंस्टाग्राम पे रील बनाऊंगा. दैट्स द अमाउंट ऑफ वर्क अ क्रिएटर हैज टू डू. एंड फर्स्टली मोस्ट ऑफ द क्रिएटर जिनको तुम देखते हो लाखों मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, दे डोंट अर्न जैक शिट. ऑल ऑफ देम स्पीक टू मी एंड दे लाइक ब्रो वी डोंट हैव एनी फकिंग मनी. बट अगर मान लो कोई क्रिएटर है जिसमें थोड़ा दिमाग है एंड ही इज मेकिंग मनी, थोड़ा बहुत डिसेंट सारी चीज कर भी रहे, इन दैट केस एज वेल वो जो क्रिएटर है ही हैज टू वर्क एवरी सिंगल डे. बिकॉज अगर वो कंटेंट डालना बंद कर देगा, हिज बैंक बैलेंस विल स्टॉप ग्रोइंग. उस बंदे को सारी रिसर्च करनी है. कंपेयर दैट टू ल्यूक बेलमार. उस बंदे को कभी सोचना ही नहीं है कि रिसर्च कैसे करनी है, बिकॉज ऑलरेडी उनको वो लोग इन्वाइट करे. लाइक पॉडकास्ट के जो बड़े बड़े होस्ट है, दे आर इन्वाइटिंग ल्यूक बेलमार to their podcast. And obviously they're not stupid. They're entrepreneurs, they're businessmen as well. Most of the people जिनकी podcast पे जाता है, उन्होंने मास्टर कर रखा है कि उनकी podcast से सबसे ज़्यादा व्यूज कैसा है. So they will ask the exact questions which ensure कि सबसे ज़्यादा podcast पे व्यूज है. अगर मुझे पता है कि एक सवाल अगर मैं उससे पूछूंगा तो ल्यूक ऐसे आंसर कर सकता है, and that will ensure that brings me a lot of views. I'll obviously do that. So these people are experts, masters in the field. And you see the benefit Luke Belmar is getting. He does not even have to think, what should I speak about? What should the title be? वो लोग अपने आप टाइटल बना रहे, अपने आप थंबनेल बना रहे, अपने आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रख रहे. उनकी भी टीम होगी खुद की जो कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डालती होगी. वो उसकी क्लिप्स को खुद के चैनल्स पे भी डालेंगे. जो ऑडियंस ओरिजिनल वो देख रही है पॉडकास्ट को, वो ल्यूक बेलमार को देखेगी. ल्यूक बेलमार की खुद टीम उन क्लिप्स को रीपर्पस करेगी. एंड ऑल ऑफ दिस इज just a beautiful, well-oiled machine. Like, he does not have to wake up every day and just film out content. He's like, bro, एक महीने में एक बार जाऊंगा पॉडकास्ट पे, या एक हफ्ते में 4 पॉडकास्ट कर लूंगा, अगले 3 महीने 6 महीने का कंटेंट इज कवर्ड. एंड वो 1 साल पुरानी क्लिप्स 1 साल बाद फिर डाल सकते हैं. बिकॉज लेट्स से वो जिन भी चीज़ों के बारे में बात करता है, 10,000 people are interested in it. If the first clip which he posted gets only like 5,000 views, तो अगर वो दूसरी क्लिप डालता है और उसमें 3,000 व्यूज आते हैं, इट माइट भी कुछ लोग 2 बार देख ले. बट ये भी हो सकता है राइट कि 500 लोगों ने बस 2 बार देखी और 2,500 लोग जिन्होंने पहली क्लिप नहीं देखी थी, उन्होंने अब वो क्लिप पहली बार देख ली. लाइक व्हाट इज दिस, माय फोन्स बैटरी इज रनिंग लो, मुझे वार्निंग दे रहा है. दे हैव नॉट सीन द क्लिप. सो नाउ डू यू सी, उसको बार बार कंटेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है. एंड इट रन्स लाइक स्मूथ वेल ऑइल्ड मशीन. सिमिलरली मैंने भी लाइक दिस इज द एग्जाम्पल of an income producing system जिसमें उसका टाइम का डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है. That clip can be repurposed by an editor and he does not have to work on it, he does not have to post it out or anything. And that's the magical stuff. For example, मैंने भी देखा कि मेरा जो आउटबाउंड इज बेसिकली यू रीच आउट टू पीपल. आप लोगों के पास मैसेज करते हो, व्हाट्सएप करते हो, ईमेल करते हो, इंस्टाग्राम डीएम करते हो, ट्विटर डीएम करते हो, लिंक्डइन पे मैसेज भेजते हो दैट आई एम XYZ पर्सन, आई हैव दिस XYZ ऑफर हु which might be beneficial for you, basically जो concept होता है. So I was reaching out to people सबसे पहले manually, but then I saw that it was a problem. Like मैं YouTube पे जा रहा था, उनकी ईमेल ढूंढ रहा था, उनको कॉपी पेस्ट करके Gmail पे, Google Workspace पे खुद के डोमेन से मतलब ईमेल भेज रहा था. And I was like, bro, this is taking so much of my time. Then I figured out a way to automate cold outreach, automate WhatsApp outreach, automate Instagram outreach, automate email outreach, automate LinkedIn outreach, automate Twitter outreach. आई फिगर आउट वेज कि ऑटोमेट हो सकती है. एंड उसके बाद दिक्कत आने लगी कि मुझे पर्सनलाइज करना पड़ रहा था बैठ के. लाइक मैनुअली फर्स्ट लाइन जो होती है ईमेल की वो खुद लिखनी पड़ रही थी. बट वंस अगेन माई टाइम इज नाउ गेटिंग लिंक टू मनी. सो आई लाइक ब्रो आई फिगर आउट अ वे, AI कैन डू इट. वो सिस्टम मैंने बनाया. उसके बाद ये सब बढ़िया चल रहा था फॉर लाइक द पास्ट कपल ऑफ वीक्स एंड मंथ्स. बट उसके बाद एक दिक्कत आ रही थी कि जब रिप्लाईज आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ हो रहा था. वो बंदा रिप्लाई करता, मैं रिप्लाई करता, वो रिप्लाई करता, मैं रिप्लाई करता. Once again, my time was being linked to money. So I created a new AI system, an AI appointment setter,
विच बेसिकली इंटरैक्ट्स विद पीपल, जो भी रिप्लाई करता था, जैसे मैं उनसे बात कर रहा हूँ, इट रिप्लाइज टू देम विद इन सेकेंड्स. मैंने उसको पूरा ट्रेन किया कि भाई मैं ऐसे बात करता हूँ, जब वो बंदा ये चीज बोलता है उसको ये बोलना है. एंड पहले दिन यस इट डिड मेक अ लॉट ऑफ फकिंग एरर्स, बहुत गलतियां की, अजीब अजीब से मैसेज भेज रहा था. बट 2 दिन में मैंने बैठ के उसे बोला भाई जब तूने ये चीज गलत की इसको ऐसे करना चाहिए था. व्हेन समवन आस्क्स यू दैट क्वेश्चन यू शुड हैव सेंड दिस थिंग. अगर कोई बंदा पूछता है व्हाट डू यू गाइस डू, उसको ये लूम वीडियो भेज दे 2 मिनट का. लूम वीडियो पे रिप्लाई नहीं आता, 2 घंटे के बाद ये फॉलो अप पे मैसेज भेजना, ये चीज करना. उसने गलती की कि एक दुबई में बंदा था, उसने बोला 3 बजे कॉल पे बात करते हैं, तो उसने 3 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे कर लिया. सो आई गेव इट द इंस्ट्रक्शन कि जब भी कोई बंदा आपके साथ कॉल बुक करे इंश्योर उसके टाइम जोन के हिसाब से सही होगा. सो अगर 3 बजे उसने दुबई में कॉल बुक करने को बोला है, इट शुड बी बुक्ड एट 4:30 PM in my calendar. And now that AI machine, it automatically engages with all these people. It automatically उनको सारा मतलब जो भी उनको नॉलेज चाहिए होता है बिफोर गेटिंग ऑन लाइक अ सेल्स कॉल एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज प्रोवाइड करती है. एंड आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग. आई वाज लिटरली एंजॉयिंग बास्केटबॉल अपने दोस्त के साथ में, एंड दैट मशीन वाज वर्किंग आउट मीटिंग्स ऑन माय बिहाफ. एंड आई डोंट हैव टू डू इट, नो वन कैन टेल इट्स बाय द वे लाइक एन एआई और समथिंग. क्योंकि एक इंसान को अगर हायर करता हूँ, वंस अगेन उसमें भी मेरा टाइम लिंक हो रहा है पैसे से, क्योंकि इंसान को मैनेज करना पड़ता है, सारी चीज होती है. बट दैट एआई इज 2.7 और 3 times बेटर देन इन इंसान, देन अ ह्यूमन. एंड दिस वाज टेस्टेड बाय लाइक अ $multi-million 7-figure एजेंसी. उन्होंने ट्राई किया मैनुअल अपॉइंटमेंट सेटर जो इंसान होता है कंपेयर टू द एआई, एंड द एआई इज बेटर बिकॉज यू कैन ट्रेन इट. डिफॉल्ट बेकार होता है, बट ट्रेन कर दोगे इतनी बढ़िया चीज बनती है ब्रो. इट स्पीक्स एग्जैक्टली लाइक मी. मैंने उसे बताया भाई मैं ऐसे लिखता हूँ, छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस. लाइक मैं मैसेज हमेशा सारे लोअर केस में लिखता हूँ, नॉट इन अपर केस. लाइक आई डोंट यूज कैपिटल लेटर्स. मैं चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा स्पेसिंग यूज हो. आई लाइक टू हैव स्पेसिंग इन माई मैसेजेस. मैं नहीं चाहता कि एक ही लाइन में सारी चीज़ आए. वोंट लाइक एक सेंटेंस जब खत्म हो उसके बाद एक लाइन का गैप आ जाए. दैट्स हाउ आई लाइक टू टेक्स्ट. मैंने उसको ये सारी चीज़ें सिखाई, एंड नाउ दैट इज एन इनकम प्रोड्यूसिंग सिस्टम विच आई हैव बिल्ट आउट फॉर माई सेल्फ. उसके लाइक lot of things bro. For example right now I'm working on a automated like मेरा जो sales gen platform है which is basically everything you need in order to make like money online. Like not trying to sound like a guru, it's not a course. Basically you need different things. जो मेरा idea, I'm not even trying to pitch you. You need to know what to do and you need to have a way to implement that. So I built out this entire platform जिसकी मदद से you can like reach out to people even if you don't have services to offer. यू कैन सेल शिट जो हम फुलफिल करते हैं. सो इट्स लाइक भाई तो एक स्किल भी नहीं आती, हम तेरी जो सारी सर्विस है जो तू बेचने का ट्राई कर रहे हो फुलफिल कर देंगे. यू जस्ट हैव टू क्लोज द डील्स एंड वी गिव यू एवरीथिंग यू रिक्वायर टू क्लोज डील्स. सो आई बिल्ट आउट दिस एंटायर प्लेटफॉर्म विद कोर्सेज, कम्युनिटी, मेंटरशिप, सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग यू नीड. आई इवन acquired companies and I got into partnerships with them and everything. And ये जब चीज़ मैंने बनाई, अभी मेरे पास एक कंस्ट्रेन आ रहा है कि लोगों को जब फ्री ट्रायल, लाइक उसका एक फ्री ट्रायल होता है 30 दिन का ₹1 में. सो जो लोग फ्री ट्रायल ले रहे हैं उनको कस्टमर्स में कन्वर्ट कैसे करना है. सो आई एम वर्किंग ऑन दैट सिस्टम एंड फॉर दैट आई नो कि अगर मैं उनको एक दिन में बहुत जल्दी ऑनबोर्डिंग कर दूंगा, एक दिन में ही सारी चीज़ बढ़िया हो जाएगी, देन आई नो आई कैन लाइक मेक अ शिट लोड ऑफ मनी फ्रॉम देम. क्योंकि उनको मेन अभी दिक्कत ये आ रही है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है प्लेटफॉर्म समझने में, विच इज लाइक सारे सॉफ्टवेयर में वही होता है. जब भी आप एक नया सॉफ्टवेयर सीखने का ट्राई करते हो थोड़ा बहुत मुश्किल लगता है. सो आई नीड टू डू दैट, आई नीड टू फिगर इट आउट. बट वंस दैट सिस्टम इज डन, लाइक एक बार मुझे बनाने, मैं ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट्स में सारे टेम्पलेट्स डाल सकता हूँ, सारी चीज इंस्ट्रक्शन सब डाल सकता हूँ. आई नीड टू फिल्म आउट लूम वीडियोज एंड एवरीथिंग. बट वंस दैट इज डन, लाइक ऑटोमेटेड इनकम प्रोड्यूसिंग स्ट्रीम, क्योंकि उन बंदों को फायदा मिल रहा है जितने वो मुझे दे रहे हैं उससे 100 गुना ज्यादा फायदा मिल रहा है. एंड इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस. दैट्स द पार्ट, लाइक दैट्स द पार्ट ऑफ बिल्डिंग एन इनकम प्रोड्यूसिंग सिस्टम, जो कि मैं कभी कर नहीं पाता अगर मैं ये दिक्कत नहीं देखता कि मेरा टाइम जो है वो पैसे से लिंक्ड है. एंड आई एम नॉट सेइंग 100% पैसिव इनकम हो सकती है. लाइक डोंट गेट इनटू द लाई और द बिलीफ कि स्टार्टिंग में पहले दिन से 100% पैसिव इनकम होगी. आई डोंट थिंक सो दैट्स पॉसिबल. मे बी इट्स अ लिमिटिंग बिलीफ ऑफ माइंड. आई डू बिलीव इफ यू हैव द इंटेंशन कि मुझे फ्यूचर में पूरा पैसिव करना है, वांट टू डीलिंग माई टाइम फ्रॉम मनी, फ्यूचर में कुछ साल की मेहनत के बाद हो सकता है. बट पैसिव में जाने से पहले आपको ढंग से प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए होता है. सो जस्ट सेट दैट एज योर गोल. जो भी प्रोसेस में कर रहा हूँ उसको जितना हो सकता है पहले तो बढ़िया करो. बढ़िया जब हो गई देन ट्राई टू ऑटोमेट एंड सिस्टमाइज इट, which brings me to the next point. Now someone might complain that Somil, whatever you did with the AI thing, whatever,
it probably costed you money. Like you're paying like $400, $500 a month, which is like 30k, 40k rupees a month. And ये तो देने पड़ रहा है. This is more expensive. Like पहले तो तू खुद भी मैसेज कर सकता था सारी चीज. This is so fucking expensive. I'm like a fucking crybaby. I'm going to be like all of that crap. And yeah, that's a valid point. 40k rupees might be a lot of money for someone else. कोई बंदा जो ल्यूक बेलमार को देख रहा है, he might be thinking, even if Luke pays like a minimum of $2,000 to the editors, he has to pay like $300,000 a month in salaries, which is more than like 2.4 CR rupees, if I'm not wrong. And yeah, you're absolutely right. You're an idiot. जिनके बारे में ल्यूक बेलमार बात करता था. People who look at the price of something instead of looking at the cost. Price and cost are two very different things. The price, like Luke Belmar का example लेते हैं. The price of him not having these employees, the price of him having these employees is 300,000. But उसने जो भी वो सारे views generate किए, he has generated like billions of views in just his first year of creating content. जो उसका price है, like अगर सारी चीज calculate कर लेंगे, जो उसका CPM आता है, which is how much money he has to invest in order to generate 1,000 impressions, basically 1,000 views उसके videos पे, it comes down to like 2 cents. $1 जो होता है, which is 84 rupees, it has 100 cents. So basically less than 2 पैसे. एक च्युइंगम 100 पैसे की आती है. So you can either have one chewing gum or you can have like कितना होगा, like 50. Basically like 50,000 views. What do you think is more valuable? एक chewing gum या फिर 50,000 views? बट बहुत सारे लोग देखेंगे एंड बोलेंगे भाई ये बंदे ने 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, वॉट एवर. बट ही इज लिटरली गेटिंग 50,000 views for the price of a chewing gum in India. The price of him paying the salaries and everything, that's $300,000 a month. But the cost, जो cost है, अगर वो ये चीज़ नहीं करेगा, cost is basically अगर आप ये पैसे नहीं खर्च करते हो तो उसका क्या impact होगा. He has to give money to Facebook, advertising खरीदने के लिए, YouTube. And the average CPM like $10 आराम से होता है बाहर. इंडिया में थोड़ा कम होता है क्योंकि सड़े एडवर्टाइजर्स आते हैं, बट बाहर इट्स ईजिली अराउंड $10, लाइक अ वेरी सेफ एस्टिमेट. वो तो फाइनेंस नीच में तो उसके लिए और ज़्यादा महंगा पड़ता है. इमेजिन उसको एक जगह पे 800 रुपये, लाइक $850 के उसको 1,000 व्यूज मिल रहे हैं, और दूसरी जगह पे 2 पैसे के मिल रहे हैं. नॉट 2 रुपीज, 2 पैसे. इट्स ऑलमोस्ट लाइक थाउजेंड्स ऑफ टाइम चीप. लाइक मैथ्स करोगे तो अगर 2 रुपए के होते तब भी 400 गुना सस्ते होते. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 40,000 टाइम्स चीपर इफ यू ट्राई टू द मैथ. सो द प्राइस इज वो बंदा लाइक 2.5 करोड़ दे रहा है, बट द कॉस्ट वुड बी, अगर वो 2.5 करोड़ अपने जेब में रख लेता है, पैसे बचा लेता है, इज ही हैज टू पे लाइक 40,000 टाइम्स मोर फॉर ईच एंड एवरी सिंगल इंप्रेशन एंड आई बॉल जो उसके ऊपर आ रहा है. सिमिलरली मेरा जो प्राइस है वॉट एवर, दैट इज $400, $300, 30,000 rupees, 40,000 rupees a month. बट जो कॉस्ट है, अगर मैं ये पैसे बचा लेता हूँ, अपनी जेब में रख लेता हूँ, आई एम नॉट जोकिंग, मेरे दिमाग में आइडियाज थॉट्स आते हैं. आई एम ह्यूमन बीइंग. आई एम लाइक ब्रो, आई कैन जस्ट फकिंग एंजॉय अ वेकेशन एवरी सिंगल मंथ इंस्टेड ऑफ पेइंग दिस मनी टू दिस सॉफ्टवेयर. वॉट एवर, आई कैन जस्ट गो आउट एंड चिल इन गोवा. लाइक पूरे महीने का रेंट आराम से कवर हो जाएगा, वॉट एवर. एंड आई हैड दीज आइडियाज अपने दिमाग में, बट देन आई थॉट टू माई सेल्फ, एलेक्स हरमोजी सेड राइट कि अगर मान लो आप 1 मिनट से छोटे टाइम में लोगों को रिप्लाई करते हो, देन देयर इज लाइक अ 391% इंक्रीज इन सेल्स कन्वर्जन रेट, समथिंग लाइक दैट. सो आई वाज लाइक ब्रो, अगर मान लो मेरी जो सेल्स है वो 4 गुना हो जाती है, विल दैट अमाउंट ऑफ मनी बी लेस देन और ग्रेटर देन 40,000 rupees a month? And I was like, bro, this is so much more than 40,000 rupees a month, जो भी इंक्रीज आएगा. So the cost of me, like deciding to save that money, 40,000, 30,000, whatever, and putting it in my own pockets, would we have to pay like lakhs, like literally lakhs of money, जो मैं नहीं बना पा रहा हूँ. At the same time, I would have to work till the day I die, because मेरा टाइम अभी भी उस चीज से लिंक्ड है. So idiots look at the price of something, कि भाई ये इतनी चीज है, like ये इतने पैसे मुझे इस पे खर्च करने हैं. But the better thing to look at is the cost. The price of a gym membership might be 1,200 rupees, but the cost of the same might be your life. It might save your life. It might save you from depression. It might save you from suicide, from taking your own life away. The gym might genuinely do that.
Is that not worth like 1200, 2000, 3000 rupees a month? Ask yourself that question. The price of you saving money by buying chicken instead of mutton might be like 400 रुपये. चिकन 300 रुपये किलो आता है, मटन 700-800 रुपये किलो आता है. बट मे बी मटन में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जिसकी वजह से आपकी लाइफ स्पैन 10 साल बढ़ जाती है. अगर मैं आपको बोलूँ कि 400 रुपये क्या आपकी लाइफ में 10 एक्स्ट्रा साल के वर्थ इट है, यू प्रोबेबली वुड से यस. द 60-year-old वर्जन ऑफ यू वुड इंडीड से यस. बट वही दिक्कत आ जाती है ना, हम बस प्राइस देखने लग जाते हैं इंस्टेड ऑफ फिगरिंग आउट द कॉस्ट फॉर द सेम. एंड डोंट बी एन इडियट ब्रो. लाइक कॉस्ट इज लाइक वो जो रिग्रेट फील होता है ना कि अगर यहाँ पे ये चीज़ कर लेता क्या होता. फॉर एग्जाम्पल है लाइक ये डोनाल्ड ट्रंप अभी आज ही प्रेसिडेंट बना. आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑन 20 जनवरी. 20th या क्या है आज, 21st सॉरी. आई एम फिल्मिंग दिस ऑन 21st. ही बिकेम द प्रेसिडेंट येस्टरडे. एंड द कॉस्ट ऑफ हिम लाइक उसने एक अपना ट्रंप कॉइन लॉन्च किया था. द प्राइस, मान लो अगर मैं उस टाइम पे उठा होता है, वॉज अस्लीप, बट लेट्स आई वॉज अस्लीप वोकन अप, एंड मुझे पता चलता कि ये ट्रंप अपना ये कॉइन लॉन्च कर रहा है. द प्राइस लाइक द अमाउंट ऑफ मनी इफ आई was planning to invest in it, it might be like $1,000, $2,000, whatever, जो मैं बचा सकता था, whatever, just to be on the safer side. But the cost of the same would be in thousands, tens and thousands of dollars, potentially millions of dollars. And the cost is so much greater. वो इतने लोगों को रिग्रेट हो रहा था, ट्विटर पे कंप्लेन कर रहे थे, भाई मुझे पता नहीं चला, I missed out on generational wealth, blah blah blah. That's the cost of it. And regret is always worse than रिजेक्शन, एटलीस्ट जो भी मैंने लाइफ में देखा है. सो डोंट लुक एट द प्राइस ऑफ थिंग्स, लुक एट द कॉस्ट कि अगर ये प्राइस इन्वेस्ट नहीं करता है तो क्या होता है. एंड आई हैव डन सम TLDR वर्क. बेसिकली पूरे वीडियो से क्या टेक अवे करना चाहिए. द फर्स्ट थिंग, डू इट राइट. कोई भी वैल्यूबल चीज़ ला जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार है. एंड इफ यू थिंक व्हाट इज दैट वैल्यूबल थिंग, लाइक व्हाट एग्जैक्ट स्किल शुड आई लर्न, लुक अराउंड योरसेल्फ, गो टू ग्रुप जहाँ पे तेरी नीश वगैरह हंग आउट करती है. जस्ट ट्राई टू लुक एट कॉमन एरर्स. क्या उनकी मेन चीज़ है जिसमें वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या दिक्कत है उनकी लाइफ में आ रही है. जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट. व्हाट इज द मेन थिंग, लाइक द मेन कॉज ऑफ कंसर्न दिस पीपल आर फेसिंग, एंड देन जस्ट फिगर आउट अ सिस्टम जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. एंड नाउ यू हैव अ सिस्टम विच इज वैल्यूएबल टू पीपल. क्योंकि अगर एक बंदे को दिक्कत है एंड अगर तू उसके लिए वो सॉल्व कर देते, दैट इज फकिंग वैल्यू. वैल्यू इज क्रिएटेड व्हेन पेन इज अलीविएटेड. जब किसी की लाइफ से तू दर्द निकालता है, चार्ली मॉर्गन सर ने बोला था, वैल्यू इज क्रिएटेड, जैसी वो चीज हो जाती है. सो जस्ट फिगर आउट व्हाट इज द शिट पीपल आर सफरिंग विथ एंड जस्ट फिगर आउट अ वे टू सॉल्व दैट. वंस यू हैव फिगर्ड आउट द सिस्टम, लाइक डू नॉट कंटिन्यू वॉचिंग अहेड, लाइक डू नॉट ट्राई टू डू एनी ऑफ द थिंग्स, डू नॉट ट्राई टू ऑटोमेट, सिस्टमाइज इट, डीलिंग योर टाइम फ्रॉम मनी. जब तक एक ढंग की चीज नहीं, एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है. प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट की एक चीज काम करती है. सैम ओन्स वाज अ लेजेंड इन फेसबुक एडवर्टाइजिंग, व्हाटएवर. बट वो बंदा कहता था, डू नॉट स्टार्ट योर फेसबुक एड्स, यू जस्ट गोना बी वेस्टिंग मनी अगर आप ऑर्गेनिक के थ्रू नहीं बेच सकते. ऑर्गेनिक इज बेसिकली रीचिंग आउट टू पीपल बाय कोल्ड ईमेल्स, कोल्ड DMs. अगर आप सक्सेसफुली 1 से 10 लोगों को बेच पाते हो एंड उसके बाद रिजल्ट्स ला पाते हो, यू हैव अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो सिस्टम में वो काम करता है, एंड देन यू कैन लेवरेज पेड एडवर्टाइजिंग. So get the proof of concept right, and once you have that, systemize and automate the processes to make money. Systemize and automate as much as possible. हिमांशु अग्रवाल की लाइन थी, do it right once, but don't do it twice. जैसे एक बार ढंग से कर ले तो documented, automated. क्या चीज़ automate करनी चाहिए, जो भी चीज़ हो सकती है, as much as possible, provided वो सिस्टम जो है वो ढंग से काम कर रहा है. उसको ऑटोमेट कर देगा और बेकार होगा अगर पहले काम नहीं कर रहा था. एंड जितना हो सकता है, आई वुड ऑलवेज प्रेफर, लाइक सिस्टमाइज का बेसिकली मतलब होता है उसको बहुत सिंपल बनाना, कि एक पूरा सिस्टम बना देना कि एक रैंडम अनपढ़ इंसान उस सिस्टम को फॉलो करेगा तो वो एग्जैक्टली जो तुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो रेप्लिकेट हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको सेल्स रेप को ट्रेन करना है आपकी सेल्स कॉल लेने के लिए, दैट्स बेसिकली यू क्रिएटिंग अ सिस्टम, बिकॉज सॉफ्टवेयर से अभी सेल्स कॉल रेप्लिकेट नहीं हो सकती. आई वुड सजेस्ट कि जितना ज़्यादा हो सकता है टेक्नोलॉजी से सिस्टमाइज और ऑटोमेट करने का ट्राई कर, बिकॉज इंसानों में यही दिक्कत आती है. लाइक do you know, like a question for all of you, do you know a marketing agency which is doing like $1 billion a month? I don't think so. Like मैंने तो अब तक नहीं सुना है, अगर कोई करती है तो बता दो. And the issue is like why agencies don't scale to like $10 million a month or like $1 billion a month. There's a reason. like चार्ली मॉर्गन ने अपनी एजेंसी $1 लाख पे बंद करके कोर्स बेचने में चला गया, and उसका जो कोर्स है on like getting more qualified appointments and everything, it basically says
जब आप $1 लाख महीना पहुंच जाओगे या 80,000 $90,000 अ मंथ, then you should simply look into getting into coaching and consulting, because agency is not very scalable. But never have you asked yourself the question why? एक एजेंसी स्केलेबल क्यों नहीं होती है? क्योंकि मान लो सिंपल एग्जांपल, या वो पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी जहां आप कोचेस के लिए वीडियो एडिट करके उनकी सोशल मीडिया ग्रो करते हो, इनबाउंड लीड्स लाते हो. सिंपल एग्जांपल के लिए, एक कोच के लिए आपको एक एडिटर हायर करना होता है. लेट्स से दैट कोच इज पेइंग यू 1 लाख रुपीज एंड द एडिटर कॉस्ट यू लाइक 40,000 रुपीज. अब आप स्केल करते जाओगे, जो भी एक नया क्लाइंट आएगा, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है बट आपका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है. इट्स नॉट लाइक आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है बट उसके साथ एक्सपेंस भी बढ़ रहा है. अगर मान लो आपकी अभी फिक्स कॉस्ट है 40,000 और आपको 1 लाख रेवेन्यू आ रहा है, तो अगर आप 2 लाख रेवेन्यू पे पहुंचते हो, इट वोंट बी लाइक आपकी फिक्स कॉस्ट 40,000 ही रहेगी. इट विल बी आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 80,000 रुपए हो जाएगी. डू यू नाउ सी द डिफरेंस? जब भी आप और ऊपर बढ़ रहे हो, आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ती जा रही है. एंड द थिंग अबाउट टैलेंट इज, लोगों को जितना ज्यादा हायर करोगे उतना ज्यादा उन्हें मैनेज करना मुश्किल होता है. बिकॉज मैनेजमेंट मुश्किल होती जाएगी, आप उनको ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाओगे. ढंग से कंट्रोल नहीं करोगे, क्वालिटी ऑफ काम वो कम होगा, जो आप रिजल्ट्स दे पा रहे हो वो कम होंगे. उसके साथ साथ टैलेंट को ढूंढना मुश्किल होता है पहली बारी में ही. आप रोड ब्लॉक्स फेस करने लग जाओगे. एंड दैट्स व्हाई यू डोंट सी लाइक $1 बिलियन अ मंथ एजेंसीज. क्योंकि एजेंसी का बेसिक कॉन्सेप्ट ही होता है, एक बंदा है, उसको अगर खुद की इन हाउस टीम बनाने में 10 लाइक उसको खुद के वीडियो एडिटर सारी चीज करने में अगर 5 लाख लग रहा है, आप 1 लाख में कर रहे हो, क्योंकि आप एक बंदे को 5 लाख रुपए सैलरी दे रहे हो जो कि 5 लोगों का काम कर सकता है. सो बेसिकली आप लोगों की स्किल्स जो है वो एक डिस्काउंटेड प्राइस पे लोगों को बेच रहे हो, एक एजेंसी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है. सो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट स्केल इनफाइनाइटली, बिकॉज हर बार जब आपको एक नया कस्टमर लाना है और प्रॉफिट बढ़ाना है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे. बट टेक्नोलॉजी में ये नहीं होता. मेरे जो प्लेटफॉर्म है उसको 1 लोग यूज करे या 1 करोड़ लोग यूज करे, द प्राइस इज ऑलमोस्ट द सेम. ऑब्वियसली जो कस्टमर सपोर्ट होता है उसमें और लोग लाने पड़ेंगे जैसे जैसे स्केल करेगा. हो सकता है ये सब चीज़ें, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट एट द सेम टाइम जो सर्विस डिलीवरी है वो सारी जो चीज़ है, इट डज नॉट टेक एक्स्ट्रा एफर्ट और टाइम फ्रॉम माइंड. इट डज नॉट लाइक, इट जस्ट डज नॉट रिक्वायर दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एफर्ट जो हर रोज हर महीने मुझे डालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट. सो ट्राई टू क्रिएट प्रोसेसेस विच कैन बी रेप्लिकेटेड विद टेक्नोलॉजी, क्योंकि इससे आपका टाइम भी बचेगा बट आपके पैसे भी बचेंगे. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन. सिंपल एग्जांपल, मान लो मैं 10 रुपए का पेन बना रहा हूँ एंड 10 रुपए का पेन बेच रहा हूँ, उसको बनाने में 3 रुपए लग रहे हैं. इफ आई नीड टू मेक लाइक 2 पेन्स, तो मुझे 6 रुपए खर्च करने पड़ेंगे. आई कैन इंक्रीज माई प्रॉफिट्स, बट उसके बाद एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, बिकॉज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन, लाइक एक जो प्रोडक्ट है उसे रेप्लिकेट करने में कितने एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं, दैट इज नॉट जीरो. बट कोड एंड मीडिया, it's infinite leverage. This video can be watched by 50 people and then can be watched by 1 people, like 1 person. The amount of effort it took me is exactly the same. एक बंदा देखे या 10 बंदे देखे, एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेगा YouTube मेरे से. लूम वीडियो पे मैंने एक SOP बना दी, ये एग्जैक्ट प्रोसेस है इस चीज को करने की. अब मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना पड़ रहा. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी इज जीरो. बट अगर मैं सबकी प्रॉब्लम, जो मान लो मेरे प्लेटफॉर्म में किसी को दिक्कत आ रही है, ये कैसे करना है, ईमेल का कोल्ड ईमेल में डोमेन कैसे कनेक्ट करना है, अगर मैं कॉल पे जाके बताऊं या उसको एक पर्सनलाइज खुद वीडियो बना के भेजूं, दैट माइट मेक हिम हैप्पी. बट उसमें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन इज द सेम. हर बार मुझे एक बंदे के साथ आधे घंटे कॉल पे जाना पड़ेगा, विच इज नॉट स्केलेबल. बट अगर मैंने एक वीडियो बना दी जो मैं सबको भेज सकता हूं, नाउ इट्स स्केलेबल. मुझे टाइम नहीं देना और मुझे एक्स्ट्रा पैसे इस चीज पे नहीं लगाने होंगे. आई डोंट नीड टू हायर लाइक कस्टमर सपोर्ट और वॉट एवर, बिकॉज ऑटोमेटिकली मैंने उसका SOP पूरा बना रखा है. एंड दैट्स द पार्ट ऑफ इट. लाइक कोड एंड मीडिया, देयर वाज लाइक लिटरली 10 out of 10 थिंग्स. अगर सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा है, उसका बहुत अच्छी एजेंसी है, वो अभी एक्सपांड करना चाहते हैं. सो इन February वी गोना स्टार्ट वर्क विद देम. उन्होंने खुद का कोड लिख के एक गूगल मैप्स का स्क्रैपर बनाया, विच बेसिकली मान लो आप सर्च करते हो रेस्टोरेंट्स इन दिल्ली, तो उनकी वेबसाइट, ईमेल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया सारी चीज गूगल मैप से स्क्रैप कर लेता है. वो कोड लिखने में एक बार उसे मेहनत लगी, अब वो स्क्रैपर को 3,000 रुपए महीने में बेचता है. इट टुक हिम एफर्ट वंस, लाइक एक बार उसकी 100% मेहनत लगी, वॉट एवर टाइम लगा. आई एम नॉट सेइंग आसान होता है, हलवा होता है, SOP बनाने में भी टाइम लगता है. बट जब एक बार बन गई, ही कैन जस्ट गिव इट अवे टू अनलिमिटेड पीपल. 3,000 रुपए महीना बहुत ज्यादा नहीं लगता, बट उसको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी.
अगर उस चीज़ को 100 लोग यूज़ करें या 1 करोड़ लोग उस चीज़ को यूज़ करें और जो यूज़र है उसके लिए बहुत वैल्यूबल है. सो ट्राई टू रेप्लिकेट योर सर्विसेज यूजिंग कोड एंड मीडिया एज पॉसिबल. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्री अप टाइम एंड डेवलप योर सेल्फ इंस्टेड. देखिए एक गलती जो मैं करता हूँ, जैसे ही फ्री टाइम मिलता है और बिजनेस के बारे में सोचता हूँ. विच जस्ट डेवलप योर सेल्फ. इफ आई हैव बेटर कॉन्सेंट्रेशन एंड बेटर मेंटल हेल्थ, माई बिजनेस विल इंक्रीज. Sam Owens had that one line, हमेशा कहता था, people think they have problems in their business. They don't have business problems. They just have personal problems which reflect in their business. So if you fix yourself, your business gets fixed automatically. And that line is so close to my heart. Whenever I have a happy day, when I go to the gym in the morning, when I spend time with nature, when I connect with God, business is just fucking easy उस दिन पे. But when I wake up and I open my phone, like एकदम से phone उठा लेता हूँ, whatever, it's just an uphill battle, an uphill struggle. So you have personal problems, and if you just fix them, like fix the shit going on in your head, fix your mindset and all, business will become easier. And at the same time, you'll have a better quality of life, which is what all of us want. That's why I love Luke Belma so much. He's not a retard like all these gurus जो कहता बस पैसे 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 के पीछे भागो. He's like, you just need a good fucking life. So chase that. And वो facilitate करने के लिए you need income producing systems. You need to look at the cost of not investing in something instead of the price जो आपको पे करना पड़ेगा अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो. And he was like, bro, just टिक, like वो जो पैसे का गेम होता है उस पर टिक लगा दो जितना जल्दी हो सकता है. Whatever your freedom number is, financial number जो आपको हिट करने in order to get what you truly want out of life, and dedicate all the time you have into improving and elevating yourself. That's all I had for the video. There are a lot of cool things, like some of them will be free, some of them will be paid, in the description. Definitely go check them out. If you're an agency owner who wants help with booking more appointments, my Instagram will be in the description @Soumil BIZ SOUMIL BIZ. Just DM me the word agency or anything जिससे समझ आ जाए आप YouTube से आ रहे हो. I'll be more than happy to help. Take care people. I'll just stop the recording.